Good morning, student. Now we start our session. It's 9:20. Okay. First we discuss about the last lecture. Okay. So what we discussed in last lecture? Anybody? You can write also in chat box. Okay, if you want. Or you mute yourself and then speak. Last Solid lecture. orthogonal surface. Yes, orthogonal surface. We talk about the orthogonal surfaces. Okay. What are the conditions for orthogonality? Means how you can find or check whether two surfaces are orthogonal or not? Two surfaces dot products is equal to 0. So we can say that they are orthogonal. No, 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 no. It's not true. Two surfaces dot product will not be zero. परपेंडिकुलर सब परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों. पर परपेंडिकुलर लेकिन व्हाट? वो तो सीधा आपको चेक करना है तो ओके ग्राफिकली. लेकिन व्हाट अबाउट द मैथमेटिकली? You have to go through two ways. You can go with Gradient. tangent vector or normal vector of the surfaces. Am I right? हाँ. Okay, वो हमने डिस्कस Yes किया. sir. Okay. Okay, then anybody else? So then we saw the divergent and curl of a vector. Yes, how to find the divergence of the vector field and how to find the curl of the vector field. Okay, we already discussed in last lecture. Okay, so we start with that concept. Okay, yes. Okay, now am I audible Yes, sir. and my presentation is visible or not? Yes, sir. Okay. So first, what do you mean by divergence? Okay, I go through it. So हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं. ओके, तो उसमें क्या था कि इफ यू हैव वी बार मीन्स एनी वेक्टर फंक्शन, देन इफ यू ऑपरेट द डेल्टा ऑन दैट, then you get the divergence of that vector field. Okay, so that means the del by del xi plus del by del yj plus del by del zk into v1i plus v2j plus v3k. This is the divergence of that vector field. The divergence of vector field can be represented as div of v bar or del into v bar. Okay, now we also learn about the curl of v bar. Means if you have any vector field, then if you operate delta with the cross product with that factor, then you can find the curl of that vector v bar, and it is nothing but ijk del by del x del by del y del by del z v1 v2 v3. Okay, if you open it, that determinant you can solve that determinant, then you got the ijk form. Okay, and you remember that divergence gives the scalar function and curl of v bar gives the vector function. Okay, this is the most important part. We already discussed about the one example of divergence, so I again repeat here. V bar is equal to 3xzi plus 2xyj minus yz square. So if you have v bar, then you find first component of that v bar, that means v1 v2 v3. Please mute your audio. Vedant, please mute your audio. 19EC058. Yes, thank you. Okay, then find the component of v1 v2 v3, then apply it in the definition. Okay, if you apply in the definition, then you can find the del by del x of 3xz, del by del y of 2xy, del by del z of minus yz square. Okay, if you differentiate partially with respect to x, then first component will gives you 3z, second component will gives you 2x, and third component gives you minus 2yz. Okay, we already discussed this example. Then we also discussed one example for curl of f bar. Am I right? ये हमने किया था ना. Yes, sir. ओके, यस. सो इफ यू हैव एफ बार, मैंने यहाँ पे बोला भी था कि एफ बार यहाँ पे f1 f2 f3 आपको लिखना है. ओके, यू कैन ऑल्सो गो विथ v1 v2 v3. ओके, एफ बार इज इक्वल टू v1 i
plus v2j plus v3k. So the components are v1, v2 and v3. If you replace them into the definition of curl of f bar and solve it, if you solve it, then you find the I into del by del y of 2yz raised to 4 minus del by del z of minus 2x square yz minus j del by del x of 2yz raised to 4 minus del by del z of xz cube plus k cap del by del x of minus 2x square yz minus del by del y xz cube. And if you solve or if you find the partial differentiation of all the components, then you got 2z raised to 4 plus 2x square y I plus 3x z square j minus 4x y z k and 1 minus 1 1. Okay, clear? Okay, so this is the last example we have already done. Also we do both the example, am I right? First and second हमने किया था. Yes, sir. Okay, now we go for the third example. Try for this. If v bar is equal to e raised to xyz into I plus j plus k, then find curl of v bar. Okay, सब लोग इसके लिए try करेंगे. Sir, last though you gave us an homework. So Yeah. Last two, yes. Yes, that's why I am discussing here. कि कितने लोगों ने किया वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा ना. सर लास्ट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब Yes, okay. आंसर सही है कि नहीं वो चेक करना है. We will verify it. Okay, first concentrate on third example. Okay, हम कर रहे हैं दोनों यहाँ पे जल्दी से क्विकली हम सॉल्व करेंगे. Okay, कितने लोगों ने किया है? How many students already done it? Raise your hands. Yes, good. Karina, Shreya, Ayushi, Ishan, Smith, good. Ted, ऐसे ही मत रेज हैंड कर देना. ओके, करना बहन, ध्रुव, गुड, सादिया, गुड, वेरी गुड. ओके, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया है, गुड वन, गुड. स्मिथ, तन्मय, ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, गुड. ट्राई करते रहना, नहीं तो नहीं पता चलेगा. ओके, तो क्या आया था, आंसर क्या आया था, कौन बताएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस कर्ल ऑफ v bar? एनीबॉडी? सर zx minus yx zx minus yx, okay, into e raised to xyz I cap into e raised to xyz I cap, good, minus zy minus zy minus xy xy e raised to xyz into j cap xyz into j cap, good, plus and yz minus xz into e raised to xyz k cap. ओके, डन. ये सबको मिल रहा है k cap. ओके, सबको यही आंसर मिला है या इफ यू हैव एनी वेरिएशन देन प्लीज लेट मी इन्फॉर्म. Sir, e raised to 2 times xyz. e raised to 2 times xyz is not possible, I think, because वो तो उसको तो कुछ भी करो आप, वो तो e raised to xyz ही रहेगा, कभी दो बार e raised to xyz नहीं आएगा. Are you getting? If you differentiate e raised to xyz, then you always get e raised to xyz into something. पर सर जब हम उसका वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें Okay. लाइक हमारा सेकंड और थर्ड रो में दोनों में ई रेस टू एक्स वाई जेड पूरे में Yes. कॉमन है. Yes, तो good. सर हम वो भी सही एक बात. एक हाँ सर, तो हर एक रो में से अगर ई रेस टू एक्स वाई जेड सेकेंड रो में से कॉमन निकालेंगे और नेक्स्ट रो में से अगर ई रेस टू एक्स वाई जेड कॉमन निकालेंगे तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा? हाँ, मे बी. ओके, चलो देखते हैं. ओके, e raised to xyz वाला था ना. ओके, आई थिंक इट इज नॉट हियर. ये रहा. ओके, डन. तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लो. चलो सब लोग, e raised to xyz I plus j plus k find curl of v bar del cross v bar. ओके, अब जो आप बोल रहे थे लास्ट में डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड यहाँ पे है,
तो आपको 2 टाइम्स नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? लास्ट में ख्याति आप बता रहे थे ना, नहीं सर, और क्रीना। 46। नहीं सर, क्रीना ओके ओके 46। हाँ तो क्रीना देखो यहाँ पे आप बोल रहे थे ना, वो कब आएगा? जब यहाँ पर भी e⁻⁴ होगा तब आएगा ना। अंडरस्टैंड? यहाँ पे तो फिक्स क्वांटिटी, ये दो तो फिक्स ही है हमारे पास, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हुआ e⁻⁴, सेकंड कंपोनेंट हुआ e⁻⁴, थर्ड कंपोनेंट हुआ e⁻⁴। अब इसका आपको जितनी बार आप डिफरेंसेस करेंगे, फॉर एग्जांपल डेल बाय डेल वाई ऑफ e⁻⁴ फाइंड करेंगे तो एक्स जेड आगे आ जाएगा, e⁻⁴ एज इट इज रहेगा, लेकिन एक ही बार आया देखो आप। अंडरस्टैंड? सेम वे यहाँ पे इफ यू सॉल्व दिस डेल बाय डेल जेड ऑफ e⁻⁴, देन यू गेट xy इंटू e⁻⁴ माइनस जे, यहाँ पर भी सेम, लेकिन इंडिविजुअल वन टाइम ही आएगा। यू कैन नॉट फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ e⁻⁴। अंडरस्टैंड क्रीना? यस। ओके तो यहाँ पे आप सभी में से e⁻⁴ कॉमन निकालेंगे तो वन टाइम e⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, देन आई एक्स जेड माइनस एक्स वाई हुआ, माइनस जे वाई जेड माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस के वाई जेड माइनस एक्स जेड हो जाएगा। ओके सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन? एनी कंफ्यूजन? ये सही आंसर था ना, जेड वाई माइनस वाई एक्स, यस सही है। ओके ये सही आंसर था। डन? ओके व्हाट अबाउट लास्ट एग्जांपल? लास्ट एग्जाम्पल का पहले फ्लो डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड लास्ट एग्जाम्पल। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पहले क्या फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, देन यू कैन फाइंड इट। कौन बताएगा? चलो सर पहले पहले कर्ल फाइंड करेंगे। यस पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा कंपलसरी। ओके उसके बाद ही आप प्रोडक्ट रूल मीन्स डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, उसके अलावा नहीं फाइंड कर सकते हो। और ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ, क्या आएगा? कर्ल ऑफ वी बार। एम आई राइट? यस यही सर। है? यस सर। नो दिस इज नहीं सर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार। यस 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 आपने, मैंने बोला ऐसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दिस इज रॉन्ग। बिकॉज आप देखो कि डेल क्रॉस वी बार जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी पे जब मैं डेल ऑपरेट करता हूँ देन इट इज ऑलवेज डाइवर्जेंस, इट इज नॉट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे इसका आंसर अगर आपको स्केलर मिलता देन इट विल बी ग्रेडियंट। अंडरस्टैंड? सबको पता चल रहा है? Yes, आर यू अंडरस्टैंड? yes, यस sir. सर। ओके तो यहाँ पे जो है दिस इज नॉट अ ग्रेडियंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस। दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वी बार। ओके तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, अगर एमसीक्यू में भी पूछा जाए या फिर एग्जाम में भी पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान रख के करना है। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे डेल क्रॉस वी बार फाइंड करना पड़ेगा। चलो सब लोग डेल क्रॉस वी बार फाइंड करो और उसका आंसर बताओ। चलो डेल क्रॉस वी बार मीन्स कर्ल ऑफ वी बार फाइंड करो। चलो मिला डेल क्रॉस वी बार स्टूडेंट? चलो आज हम ऑनलाइन स्ट्राइक करते हैं। ओके 19EC013 स्विच ऑन योर कैमरा। ईशान 19EC013 switch on your camera. Yes, are you doing? Ishan, where is your Yes, notebook? sir.
Okay, good. Switch off your camera. Okay, so you can save your data. 19 issue 023. Ravi, switch on your camera. Ravi, 023. Are you there? रवि कोठिया, चलो एक बंदा पकड़ा गया. 23 is not there. Okay. 19 EC 035. Switch on your camera. Dhyanam. Okay. Are you doing? Yes. Okay. Okay. Switch off. Okay. 19 EC 059. Yogi. नाइनटीन EC 059 योगी पटेल. जीरो 59 सेकंड बंदा पकड़ा गया. चलो 5923. ओके. 19 EC 072 ईशान सिंह. Yes, sir. Switch on your camera. Yes, sir. Okay. Switch off it. Okay, no problem. जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया ना, 3-4 बंदे ऐसे ही भाग गए. 49 पे आ गया है अटेंडेंस. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, मिला आंसर? व्हाट यू गेट स्टूडेंट? आर यू गेटिंग इट? डेल क्रॉस वी बार तो मिल जाना चाहिए यार. चलो या ओके सर. हाँ, क्या मिला? Sir, final answer. सर फाइनल आंसर 0. हाँ, फाइनल आंसर 0 सही है. ओके, अब कैसे आ रहा है देखो यहाँ पे. चलो वी बार इज इक्वल हो गया ना. ओके, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2x जेड के देन फाइंड दिस वन. ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज योर, यहाँ पे हमने वी बार दिया है, वही वेक्टर हमने यहाँ पे एफ के साथ लिया है. ओके, सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा फाइंड करने के लिए बोला है डाइवर्जेंट. इट इज एक्स्ट्रा. ओके, सो नो इश्यू. हम पहले कर्ल फाइंड करेंगे और ये तो फाइंड हमको करना ही है. डेल डॉट डेल क्रॉस वी बार. ओके, तो यहाँ पे डेल क्रॉस वी बार पहले फाइंड करेंगे. तो डेल क्रॉस एफ है हमारा यहाँ. तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ वी एंड एक्स यहाँ पे थोड़ा दिया है, वी एंड एफ. ओके, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स जेड, 2xy, these are the components of that vector field. Okay, तो i 2z माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि डेल बाई डेल वाई इसका फाइंड करेंगे तो आपको 2z मिलेगा. डेल बाई डेल जेड फाइंड करेंगे तो x मिलेगा. माइनस जे, यहाँ पे आप देखो x है ही नहीं तो 0, यहाँ पर भी z नहीं है तो 0, प्लस के डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस दैट मीन्स z माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 2z माइनस एक्स आई माइनस 0j प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के. ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड एट 1 पॉइंट. यहाँ पर भी हमारे यहाँ 1 पॉइंट नहीं दिया है, देखो यहाँ पे तो नहीं दिया है तो कोई इश्यू नहीं है. ओके, अगर दिया है तो उसको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा आपको. तो ये हुआ 3i माइनस 0j प्लस 0k. आपको क्या करना है, सिंपली सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1 इन दिस डेल क्रॉस एफ. ओके, नाउ इफ यू फाइंड द डेल ऑफ दिस, दैट मीन्स इफ यू फाइंड डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, तो यहाँ पे देखो विदाउट पॉइंट सब्सटीट्यूशन हमने यहाँ पे किया है. तो डेल डॉट मीन्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2z माइनस आई है ना, फर्स्ट कॉम्पोनेंट कहा गया, ये रहा 2z माइनस एक्स इंटू आई था ना. तो 2z माइनस एक्स हुआ. डेल बाई डेल वाई ऑफ सेकंड कॉम्पोनेंट मीन्स 0. ओके, सो 0 डेल बाई डेल जेड ऑफ z माइनस एक्स स्क्वायर
so z minus x square. If you partial differentiate with of this first component, then you got 2z 0 minus 1. So यहाँ पे -1 मिल गया. This is 0, so 0. Del by del z of z minus x square हो जाएगा 1 minus 0, so 1 minus 1 plus 1 will be 0. This is your final answer. Okay, understand? Okay, done? Any doubt in last example? Anybody? No, sir. Okay, so we go for next. Okay, these are the important notes for divergence. Okay, तो divergence के लिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो. देखो यहाँ पे इफ डाइवर्जेंस ऑफ v बार greater equal to 1, then the magnitude of a vector in v bar increases. Means इसका मीनिंग क्या हुआ कि if you find the divergence of v bar at any point, then if it will be greater equal to 1, तो उसका जो v bar का मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग सिचुएशन में होगा. मीन्स वो बढ़ता ही जाएगा. मीन्स अगर इफ यू चेंज द पॉइंट 1 by 1, then it will be increasing. Okay, so this is the first note. Then if the divergence is in between 0 to 1, means 0 less than divergence of v bar less than 1, then the magnitude of a vector, means ओरिजिनल जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीजिंग पोजीशन में चलता जाएगा. ओके, एंड इफ डाइवर्जेंस ऑफ v bar इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज. मीन्स अगर वो 0 हो रहा है तो वो नो चेंज है उसके मैग्नीट्यूड में. मीन्स उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. ओके, so no change in the magnitude of a vector in v bar, means uniform situation, means everywhere the magnitude will be same. Okay, if divergence of v bar equal to 0, this is the important point. Okay, then it is known as solenoidal vector. Okay, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब डाइवर्जेंस ऑफ v bar इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो v bar इज नोन एज सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड. ओके, एनी डाउट इन दिस नोट्स? No, sir. Understand? Okay, same notes for vector field of curl. Okay, curl of a vector field. Okay, so here if you find del cross v bar greater than 0, then the rotation of a vector in v bar is in anti-clockwise direction. Means if you find the curl of v bar, then it gives, okay, द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मीन्स जिसका भी आप कर्ल फाइंड कर रहे हो और कर्ल अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. मीन्स उसका क्या हुआ कि उसका जो पाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज है. ओके, सेम वे यू कैन डिफाइन डेल क्रॉस वी बार लेस देन 0. ओके, देन यू कैन से दैट वेक्टर वी बार इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, अगर वो लेस देन 0 है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो जब वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं इट इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, और जब क्लॉकवाइज की बात करते हो तो वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाता है. ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर ये है तो अगर ये इस साइड जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर वो इस साइड जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको हम नेगेटिव साइड बोलते हैं. है ना, पता है ना सबको ये तो. So that's why here if del cross v bar less than 0, then it is clockwise direction, and del cross v bar is greater than 0, then it will be in anti-clockwise direction. Okay, now if del cross v bar equal to 0, then it is irrotational, and this type of field is also known as the conservative field. Means हमारे आसपास जितने भी फील्ड दिखाई दे रहे हैं, जितने भी भगवान ने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है, वो सारे मोस्ट ऑफ द फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है. मीन्स उसमें ई रोटेशनल है, मीन्स उसमें रोटेशनल एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके, तो डेल क्रॉस वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. दैट वेक्टर इज नोन एज वी बार इज नोन एज ई रोटेशनल, एंड इट इज द कंजर्वेटिव फील्ड, और वो फील्ड को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड है. ओके, एनी डाउट इन कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड्स स्टूडेंट? No. Okay, so can I go further? Yes, sir. Okay, तो ये थोड़ा
दोनों आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू 100% निकलता है. इफ़ यू सी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर देन यू विल बी फाइंड इट. ओके, ये दोनों में से आपको एक तो एमसीक्यू दिखाई देगा ही देगा. ओके, इंटरनल में भी एंड एक्सटर्नल में भी. तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसका अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, लेकिन डू फास्ट. ओके, यस. हाँ, मैसेज आया उसका नेट प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए वो वॉइस नहीं आ रहा उसका. कौन सा स्टूडेंट? कौन? हेलो, हर्षवर्धन. अभी If you have net problem, then put a comment in chat box. Okay, that's why I can find you. Done? ओके सर. And I also include in your attendance also, है ना? अगर आपको कोई seriously कोई problem है तो I will consider it. Okay, लिख लिया divergence के लिए? Okay, then you can find here call. सर Yes. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे. Means your internet strength is weak. अभी दिख रहा है? You wait 2 to 3 minutes. नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा. सर एक और डाइवर्जेंस और करो सर. क्या एक बार? डाइवर्जेंस वालों करो, डाइवर्जेंस वालों बाकी है वो लोगों. ओके ओके, लो लिख लो चलो, लेकिन डू फास्ट. हाँ हाँ, और जो आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा था तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप ही को हो रहा है? बाकी से व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? It is visible, sir. It is visible. Okay. Then you wait for 2 to 3 minutes. If your internet will be stable, then you can see it. है ना? जिसको नहीं दिख रहा था उनको. ओके. ओके सर. Okay, सर Ravi. चल लगाई क्यों? Okay, Ravi and Preet both are facing a problem. Okay, no issue. Okay, curl of vector field. Write down. Do fast, huh? And we will discuss more examples and other things also. Okay, Preet is rejoined. Have you received my email yesterday? यस सर. है ना? तो उसमें Yes, मैंने लिंक भेजा है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ पोर्शन मिस कर जाते हो तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो, है ना? कभी भी आप देख सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना? मैं जब भी एक वीक खत्म हो जाएगा तब आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, and after 15 days or after completion of our unit I will mail you a PDF also. Okay, so you can prepare accordingly. Okay, can we go next student? Screenshot ले लो, it is better, है ना? Yes, sir. What about other student? लिख लिया? कंप्लीटेड. ओके जल्दी करो हाँ बेटा. ओके,
I go next, है ना? Okay, this is your first example for irrotational and solenoid. We will discuss about the irrotational and solenoidal vectors. Okay, so that the vector f bar is equal to sin y plus zi plus x cos minus zj plus x minus yk. Krina, please mute your mic. ओके थैंक यू. हाँ, प्लस एक्स माइनस वाई के इज ई रोटेशनल. तो हमको ये जो वेक्टर दिया है उसको चेक करना है कि इट इज ई रोटेशनल वेक्टर. सो हाउ वी कैन फाइंड? वी नो दैट इफ द कर्ल ऑफ वी बार इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी ई रोटेशनल, और इफ डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इज इक्वल टू 0 देन सोलेनोइडल. तो यहाँ पे हमको एक ही चेक करना है, ई रोटेशनल. तो simply find the curl of that vector field. Okay, if you find the vector field, sorry, curl of vector field, if it is 0 then it is irrotational, if it is not 0 then it is not irrotational. Okay, so here f bar is equal to this one, sin y plus zi plus x cos y minus zj plus x minus j x minus yk. Okay, so what is our first component? Sin y plus z, second component x cos y minus z, and third component x minus y. Okay, if you find the curl of that vector f bar, then we get, this is the definition of the curl. We simply replace v1 v2 and v3 here. So sin y plus z, x cos y minus z, x minus y. If you find the first differentiation, partial differentiation with respect to y of x minus y, then it will be 0 minus 1, so it is minus 1. If you cross it, that means minus del by del z of x cos y minus z, then it gives minus 1. Okay, then minus j, उसके बाद क्या आएगा? सो del by del x of x minus y, again it gives 1. Del by del z of sin y plus z, again it gives minus 1 into j plus. Then del by del y of sin y plus z, that means if you differentiate with respect to y of sin y, then sin y will be cos y, derivative will be cos y, then it is cos y minus del by del x of x cos y minus z, that means x, differentiation of x will be 1 and cos y is as it is, so minus cos y k. Here you can see that minus 1 plus 1, 1 minus 1, cos y minus cos y, then they all are cancel out. Okay, so these both are cancel out, these are the cancel out, plus minus plus minus. Okay, and it gives 0i plus 0j plus 0k, that means it is 0 vector. So del cross f bar will be 0, then it is irrotational. Okay, any confusion in this example, dear student? No, sir. What about others? No, sir. पक्का? No, sir. ये तो सिंपल है, सीधा आपको no sir, no problem. ओके, कर्ल फाइंड करना है. थैंक यू. कर्ल फाइंड करना है. तो नेक्स्ट यू कैन सी हियर फॉर सोलेनोइडल. अब सोलेनोइडल जैसे ही दिखाई दे तो व्हाट वी फाइंड? क्या फाइंड करेंगे? डाइवर्जेंस. ओके, और वो डाइवर्जेंस को क्या हम चेक करेंगे? जीरो है कि नहीं. अगर जीरो है तो उसको क्या बोल देंगे? सोलेनोइडल. लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में आपको पूछा गया है. देखो यहाँ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए. यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट. सॉरी, ये नॉट दिस वन, सॉरी, दिस इज योर कांस्टेंट ए. ओके, so that the vector f bar is equal to x plus 3y plus y minus 2zj plus x minus azk is solenoidal. मीन्स यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये सोलेनोइडल है, तो ये a फाइंड करो. ओके, मीन्स ये कौन से a के लिए ये सोलेनोइडल होगा, दैट इज अवर क्वेश्चन. अंडरस्टैंड? क्लियर स्टूडेंट? पता चला स्टेटमेंट क्या बता रहा है आपको? Yes sir. Yes, sir. Okay, so we start with our given vector. So f bar is equal to x plus 3y plus y minus 2zj plus x minus azk. Okay, so what is our first component? X plus 3y. Second component is y minus 2z, and third component is x minus az. First write down the definition of divergence of f bar. So divergence of f bar equal to del of v1, क्योंकि यहाँ पे मैंने v1 v2 v3 लिया है इसलिए
I am writing like this. You can also write del f1 by del x, del f2 by del y, del f3 by del z. Okay, done. So del by del x of x plus 3y first, plus del by del y minus 2z, plus del by del z x minus az. So if you differentiate first component, then you get 1 plus 0. Okay, here if you differentiate second component, then you got 1 minus 0, that means 1, and last one is 0 minus a, so minus a. Clear? So here we get 2 minus a, 1 plus 1 will be 2, 2 minus a. अब हमको गिवन क्या है कि दिस इज अ सोलेनोइडल. ओके, तो अगर ये सोलेनोइडल है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है. दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ f बार इज इक्वल टू 0 बी ड्यू टू सोलेनोइडल. सो डाइवर्जेंस विल बी 2 माइनस a. सो 2 माइनस a डाइवर्जेंस की जगह पे रिप्लेस करेंगे इक्वल टू 0. दैट गिव्स a इज इक्वल टू 2. अंडरस्टैंड? Any doubt? No, sir. Okay. Then these are the examples for you. Write down. करो चलो. Find the value of n for which the vector r raised to n, r bar is solenoidal, where r bar is equal to xi plus yj plus zk. कौन से n के लिए ये सोलेनोइडल है वो आपको दिखाना है. तो ट्राई करो चलो. ये तो आप घर से कर पाएंगे इजीली. ABC वाला ये होमवर्क में दे दे रहा हूँ और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन को. ओके, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए. एनी डाउट? ओके, तो फर्स्ट के लिए आप ट्राई करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ n for which the vector r raised to n into r bar is solenoidal, where r bar is equal to xi plus yj plus zk. Okay, do this example. Try करो चलो. ट्राई कर रहे हो ना, या फिर स्ट्राइक करूं फिर से? राइट, हाँ, सीरियसली. फिफ्टी 59 तो भाग ही गया. 58 है यहाँ पे. यस सर बोलो. ओके ओके, तुम हो. 59 भाग गया है ना सर? हेलो. सॉरी सर, वो रिजॉइन नहीं हो पा रहा है. हाँ सर, वो रिजॉइन नहीं हो पा रहा. 59. ओके, उसको मैं कॉल कर देता हूँ, चलो, है ना. ओके, 59 19 EC 059 योगी पटेल. ओके, उसको बोलो कि वो कॉल रिसीव कर ले, तो ज्वाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, रवि कोठिया इज देयर, या फिर अभी भी नहीं आया वो? 19 EC 020. यस, आ गया. कहाँ गया था रवि बीच में? सर यहाँ ही था, नेटवर्क इश्यू था. नेटवर्क इश्यू था, ये अच्छा बहाना है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. हेलो सर. हाँ, हेलो. એટલે સર અહીંયા આગળ S પ્લસ આવી જાય છે ને તો પછી ઓડિયો ક્લિયર નહીં થતો અને પછી રીજોઈન આવી જાય છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ યોગી, है ना. ओके,
मुझे यही चाहिए कि सब लोग यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए बस, हाँ सर। है ना। आप लेक्चर में से 70-80% करेंगे तो पर भी कोई इश्यू नहीं है ड्यू टू नेटवर्क इश्यू, ओके, लेकिन थोड़ा करते रहो बस, दैट इज माय एम, है ना। हाँ सर। ओके, मिला किसी को? आर रेस टू एन आर बार पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि वो वेक्टर कैसे दिखाई देगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आर को हम क्या बोलते थे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर यू रिमेंबर इट? ओके, ये हमने किया था ना, एक लास्ट में एग्जाम्पल किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो चलो सब लोग, क्योंकि पहले वेक्टर आपको पता होना चाहिए तब जाके ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो ये रहा, यस, ओके। तो यहाँ पे देखो आर रेस टू एन इंटू आर बार कैसे दिखाई देगा? लुक एट हियर, जल्दी क्विकली, हाँ, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है, सॉरी। आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आर बार, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वेलर होता है ना, उसको हम विदाउट बार लिखते हैं तो वो स्क्वायर रूट मॉड्यूलस लिखते हैं, है ना। मीन्स अगर इफ यू हैव ए बार और उसका अगर मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हो तो उसको ए बी लिख सकते हो। डन, इस तरीके से ये नोटेशन है, आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आर बार स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इफ यू फाइंड आर इज टू एन देन इट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू एन बाई 2, ओके, क्योंकि बोथ साइड आपने nth पावर लिया हुआ है। इफ यू फाइंड देन दिस इज योर वेक्टर वी बार, ओके। वी बार इज इक्वल टू क्या चाहिए था हमको? आर रेस टू एन इंटू आर बार। सो आर रेस टू एन मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू एन बाई 2 इंटू आर बार क्या था मेरा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये दोनों का प्रोडक्ट है तो वी बार मेरा हो जाएगा एक्स इंटू फर्स्ट वन, ओके, पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इंटू आई प्लस वाई इंटू फर्स्ट वन इंटू जे प्लस जेड इंटू फर्स्ट वन इंटू के। ये तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो गया। डन, ओके, दैट इज अवर वी बार। अब V1 क्या हुआ हमारा? तो ये पूरा V1 है, ओके, लुक एट हियर, ये पूरा V1 हो गया हमारा। देन V2 क्या हुआ? तो ये पूरा V2 है एंड ये पूरा हमारा V3 है। डन, देन इफ यू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ V बार देन डेल V बार, क्योंकि हमको क्या दिया है? सोलेनोइडल, और सोलेनोइडल के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस, ओके। तो डाइवर्जेंस ऑफ V बार इज नथिंग बट डेल V1 बाय डेल एक्स, डेल V2 बाय डेल वाई, डेल V3 बाय डेल जेड। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा है इसलिए आपको कंपोनेंट वाइज जाना पड़ेगा। दैट मीन्स डेल V1 बाय डेल एक्स में अगर फाइंड करूँ तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू एन बाई 2। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे आपको टर्म बाय टर्म जाना पड़ेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे रूल यूज करना पड़ेगा। तो मैंने x पहले एज इट इज रखा, अब n बाई 2 पावर आगे आएगा, n बाई 2 में से एक कम होगा, दैट इज फर्स्ट, इंटू अंदर का दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में से 2x आएगा, प्लस अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू एन बाई 2 एज इट इज रहेगा और x का क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे इंटू 1 है। देन okay, now here you can see that n into x square, क्योंकि 2 कैंसल आउट हो गया, ओके, सो n into x square plus y square plus z square is to n by 2 minus 1 एंड यहाँ पे ये तो 1 ही है तो ये पूरा x square plus y square plus z square is to n by 2 हो जाएगा। अब अगर आप सेकंड कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो सीधा वेरिएशन कहाँ पे आएगा? x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों सेम रहेंगे। आप देखो यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो यही मिलेगा आपको कि यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर की जगह पे एन वाई स्क्वायर मिलेगा, ये पूरा एज इट इज और यहाँ पे पूरा एज इट इज। इफ यू फाइंड डेल V3 बाई डेल जेड तो पर भी सेम ही मिलेगा, यहाँ पे एन वाई स्क्वायर हुआ सेकंड में या थर्ड में हो जाएगा एन जेड स्क्वायर, ओके, और ये पूरा एज इट इज रहेगा। तो अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ वी बार में वो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो डेल V1 बाई डेल एक्स प्लस डेल V2 बाई डेल वाई डेल V3 बाई डेल जेड, तो आप थोड़ा ध्यान रख के करना। तो यहाँ पे आप देखो डेल V1 बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड में ये हो जाएगा, थर्ड में ये हो जाएगा। तो अगर तीनों का आप ऐड करेंगे तो n कॉमन है, तो n कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे मिलेगा। देखो n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, इनटू जो है वो एज इट इज n बाई 2 माइनस 1 वाला, ओके, प्लस करके फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड थर्ड में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो थर्ड सेकंड आएगा 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू n बाई 2,
डन? ओके, पता चला है कि नहीं स्टूडेंट? स्टूडेंट यहाँ तक पता चला? यस सर। यस सर। ओके, अब आपको क्या करना है, सोलेनोइडल लेके चलना है, दैट मीन्स जीरो लेके चलना है। दैट मीन्स यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या होगा, देखो डाइवर्जेंस ऑफ वी बार जीरो करेंगे तो यहाँ पे n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये दोनों को मर्ज करो तो ये +1 है, ये -1 है, तो n/2 हो गया। तो आपका एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, देखो n+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू n/2 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, तीनों ही तीनों स्क्वायर है। अगर उसमें से एक 0 हो गया तो पर भी दोनों नॉन नेगेटिव रहेंगे। तो अगर यहाँ से आप इसको ले जाएंगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगा कि n+3 इक्वल टू 0। अगर इसको 0 कर दिया तो वेक्टर इटसेल्फ 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने किसको 0 किया, n+3 को 0 किया। तो n+3 0 हुआ तो n इज इक्वल टू क्या मिला, -3। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? तो जब n इज इक्वल टू -3 होगा तब दिस वेक्टर विल बी सोलेनोइडल। अंडरस्टैंड? एनी डाउट स्टूडेंट? किसी को रिपीट करने की जरूरत है? सर ये वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं ना, मतलब हाँ, सर मैंने मोड ऑफ आर निकाला नहीं है, मैंने क्या किया, डेल एक्स ऑफ आर रेस टू एन इंटू एक्स कर दिया। तो उसका जब हम निकालेंगे तो हमें तो यही मिलेगा। हाँ, तो सर यही पर हमें ना उसमें वो मोड ऑफ आर करने की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा फाइनल इक्वेशन आ रहा है 3 + n इंटू आर रेस टू एन। तो 3 वो प्लस सर n, हाँ हाँ वही हुआ, यहाँ पे r⁻n ही है, देखो ये r⁻n ही है। तो सर उस बार उसमें हम मोड ऑफ ये आर नहीं निकालेंगे तो चलेगा ना सर? लेकिन r आप कहाँ से लाएंगे फिर, ये आपका वेक्टर है, वो कैसे डिनोट करेंगे आप? r⁻n को क्या लिखा आपने? सर उसको मैंने आर रेस टू एन ही रहने दिया, और उसके जब हम डेल निकाल रहे हैं तो उसमें हमने एक्स इंटू एन आर रेस टू n-1 करके लिया है। मीन्स आपने विथ रिस्पेक्ट टू r कर दिया उसका डेरिवेटिव। हाँ सर मैं आपको इसका हाँ, मैंने जो मेल सॉल्व किया मेल उसका कर, फोटो भेज दूंगी। हाँ सर। हाँ मेल कर देना है ना। ओके, कोई इश्यू नहीं। ओके, आई विल चेक एंड इन्फॉर्म यू। ओके, अब ये सेकंड जो है डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ a b एंड c, वो आप ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट। ओके, if you have any doubt in this class then you can discuss with me। किसी को डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं, then if you have no doubt